हेलो दोस्तों, स्वागत है। तो पिछली क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? डैसी लॉ तक ओरिजिन ऑफ अर्थ अब पढ़ना है, ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ अर्थ मतलब अर्थ का निर्माण कैसे हुआ। द ओरिजिन ऑफ अर्थ इज फैसिनेटिंग टॉपिक दैट एक्सप्लोर हाउ आवर प्लैनेट कम इनटू एक्सटेंसेस एंड इनवेलप ओवर टाइम। हियर आर सम पॉइंट दैट यू कैन इंक्लूड इन योर नोट। किया जाए। जैसा कि माना गया है कि जो हमारा अर्थ है 4.54 बिलियन ईयर पुराना है, लेकिन इसके बहुत सारे थ्योरी दिए गए हैं, जिनमें कि बहुत लोगों ने थ्योरी दिया कि कब अर्थ कितना पुराना है, लेकिन इसको हम माने तो 4.5 बिलियन ईयर एगो है। अप्रॉक्सिमेटली वन थर्ड द एज ऑफ यूनिवर्स बाई एरेक्शन फ्रॉम द सोलर नेबुला। नेबुला हिपोथेसिस पढ़ेंगे तब पता चलेगा। क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस दैट आल्सो गिव बर्थ टू द सन एंड अदर प्लैनेट्स। जो भी आपके हैं, सन हो गए, सूरज या अदर प्लैनेट, ये सभी चीज़ें इसमें आपके शामिल होते हैं। नेक्स्ट लिखा है कि पॉसिबल ट्रिगर फॉर द कोलैप्स ऑफ द सोलर नेबुला वाज ए सुपरनोवा explosion of a nearby star which created shock wave that disturbed the dust and gas. The nebula then started to spin faster and flatten into a protoplanetary disk with the sun forming at the center. आगे लिखा है द प्रोटोप्लेनेटरी डिस्क वाज composed of different material such as metal हो गया, पत्थर हो गया, आइस बर्फ हो गया, गैसेस हो गए, दैट condensed at different distances from the sun depending on their temperature and vola क्या लिखा है volatility. The inner part of the disk was hotter and only metal and rock clouds survived, while the outer parts of colder and ice and gases could also exist. आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर हुई। तो द मटेरियल इन द डिस्क gradually clumped together to gravity and collision, forming large bodies called planetesimals. Some of these planetesimals grew bigger and bigger, becoming। और आगे देखेंगे प्रोटोप्लैनेट्स हो गए, द प्रीकुर्सर्स हो गए of the planet we see today. Earth was one of these protoplanets along with Mercury, Venus and Mars. One of the most important events in Earth's early history was a giant impact with another protoplanet named Theia. About the size of Mars, this collision occurred about 4.5 billion years ago and resulted in the formation of the Moon, as well as the mixing of Earth's mantle and core. The impact also tilted Earth's axis and increased with its rotation speed. Next, after the impact, Earth was very hot and molten. जो आपका अर्थ है बहुत गर्म भी है और ठंडा भी है, इसका प्रभाव यहीं पड़ता है। विथ अ थिन क्रस्ट ऑन द सरफेस, जो सरफेस पर क्रस्ट वो बहुत पतला है। इट आल्सो हैड अ थिक एटमॉस्फेयर ऑफ मोस्टली हाइड्रोजन एंड हीलियम बट नो ऑक्सीजन। जो एटमॉस्फेयर में है हाइड्रोजन एंड हीलियम है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है। ओवर टाइम क्या लिखा है, ओवर टाइम अर्थ कूल डाउन एंड वाटर वेपर condenses into liquid water, forming the first oceans. The water also dissolves some of the gases in the atmosphere, making it thinner. The first evidence of life on Earth dates back to about 3.5 billion years ago, when simple
Microorganisms such as bacteria and archaea breed in the oceans. These organisms use various forms of metabolism to obtain energy from near environment such as fermentation, precipitation, and photosynthesis. Some of them produce oxygen as a byproduct of photosynthesis, which gradually accumulated in the atmosphere and ocean over billions of years. This led to the rise of more complex life forms that could use oxygen for respiration, such as algae, planets, animal and fungi. इसको याद रखिएगा, algae, planets, animal and fungi. आगे कुछ फार्मूलाज दिए हुए हैं, जैसे कि सम फार्मूलाज आर इन जूलॉजी, जैसे कि केपलर्स एंड थर्ड लॉ। मैंने इससे पहले बहुत सा डेर्सी लॉ हो गया, ये सभी चीज़ें का पढ़े थे हम लोग। दिस इज अ लॉ दैट रिलेट द ऑर्बिटल पीरियड एंड डिस्टेंस ऑफ ए प्लेनेट अराउंड द सन। द फार्मूलाज फॉर केपलर थर्ड लॉ, जिसको हम लोग पी स्क्वायर इक्वल टू 4π² हो जाता है, वेयर पी इज द ऑप्टिकल पीरियड, G is the gravitational constant, M is the mass of the sun, and A is the semi-major axis, average distance of the orbit हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट रेडियोएक्टिव डीके क्या है? तो दिस इज अ प्रोसेस दैट डिस्क्राइब हाउ अनस्टेबल एटम lose energy and change into other atom over time. The formula for radioactive decay is n is equal to n naught e minus power में delta t, where n is the number of atoms remaining after time t, n naught is the initial number of atoms, lambda is the decay constant, and e is Euler number. Radiometric dating. This is a method that uses radioactive decay to determine the age of rock or fossils based on the ratio of parent to daughter isotopes. The formula for radiometric dating is T equal to 1 upon delta T 1 and D plus P upon P, where T is the age, lambda is the decay constant, D is the number of daughter atoms and P is the number of पेरेंट एटम्स। नेबुलर हेपेटाइटिस के बारे में हम लोग देखते हैं। नेबुलर हेपेटाइटिस के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। द नेबुलर हेपेटाइटिस प्रोसेस दैट द सोलर सिस्टम, एक प्रकार का सोलर सिस्टम है जिसका उद्देश्य क्या होता है, इंक्लूडिंग द अर्थ, मतलब अर्थ को जो डिफाइन करें, फॉर्म फ्रॉम ए जाइंट रोटेटिंग क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट कॉल्ड द सोलर नेबुला। सोलर नेबुला उसे बोलते हैं जो बहुत भारी मात्रा में होता है, जो रोटेट करता है। दिस नेबुला ग्रेजुअली कॉन्ट्रैक्टेड अंडर द इन्फ्लुएंसेस ऑफ ग्रेविटी एंड इवेंचुअली फ्लैटर into a spinning disk. The central region becomes the sun, while the remaining material in the disk aggregate to form the planet including the earth. अब देखते हैं एक्सेलरेशन एंड डिफरेंशिएशन, यह क्या होता है? Accretion is the process by which small particles collide and stay together, usually growing larger in the early stages the earth formation. Numerous collision between planetesimal small planetary body resulted in the accretion of large body, eventually leading to the formation of the earth. During this process, the earth underwent differentiation with denser material sinking toward the center to form the core, while lighter material accumulated in the outer layers. एक्सलरेशन, ऐसे कण होते हैं, ऐसे छोटे छोटे कण होते हैं जो आपस में टकराते हैं और चिपक जाते हैं
और धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। अर्लियर स्टेजेस, धीरे धीरे ग्रोइंग लार्जर, बड़े हो जाते हैं। पृथ्वी के निर्माण में जैसे क्या लिखा है, अर्थ फॉर्मेशन, यानी पृथ्वी का जो निर्माण होता है तो उसमें क्या क्या स्मॉल प्लैनेटर मतलब ग्रह हो जाते हैं, छोटे ग्रह। अरेक्शन टू लार्ज बॉडी, मतलब जो टकराते हैं तो परिणाम स्वरूप बड़े पिंडों का अभिवृद्धि हो जाता है, जिससे अंततः पृथ्वी का निर्माण हुआ है, जिससे अंततः हमारे अर्थ का निर्माण हुआ है। अर्थ कैसे बना, तो इसी कारण हमारे छोटे छोटे कण आपस में टकराए, उसके कारण बड़ा हो गया कण, और प्लेनेट छोटे छोटे थे वो टकराए तो बड़े पिंडों में बदल गए, इसी कारण पृथ्वी का निर्माण हुआ। इस प्रक्रिया के दौरान ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया के दौरान द अर्थ अंडरवेंट डिफ्रेंसिएशन, अंडरवेंट प्रक्रिया के दौरान पृथ्वी का विभेदन हुआ, मतलब सघन पदार्थ केदार की ओर धंसकर कोर का निर्माण करते हुए, जबकि हल्के पदार्थ बाहरी परतों में जमा हो गए। जो अर्थ के बाहरी परत में जमा हो गए कोर में, और इनर में कोर आपका धंसकर निर्माण करता गया। यही था एक्सेलरेशन एंड डिफरेंशिएशन। अगला है फॉर्मेशन ऑफ अर्थ लेयर्स। द अर्थ इज कंपोज्ड ऑफ डिस्टिंक्ट लेयर इंक्लूडिंग द क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। जो अर्थ है 3 चीज़ों से मिलकर बना है, क्रस्ट, मेंटल और कोर से। द क्रस्ट इज आउटर मोस्ट लेयर, जो क्रस्ट होता है आउटर मोस्ट भाग है आपका अर्थ का, जो सॉलिड रॉक एंड वेरिंग इन थिकनेस, मतलब बहुत सारी मोटाई में आपका मिलता है। किसके नीचे, ओशियंस के नीचे, यानी समंदर के नीचे। द मेंटल लाइज beneath द क्रस्ट एंड प्राइमरली composed ऑफ सिलिकेट मिनरल। द कोर इज द इनर मोस्ट लेयर, जो कोर होता है इनर मोस्ट लेयर है, क्रस्ट आउटर मोस्ट है, कोर इज इनर मोस्ट लेयर है। लेयर इज बिलीव टू बी कंपोज मेनली आयरन एंड निकल। जो कोर है 2 चीज़ों से मिलकर बना, आयरन और निकल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट फिर एज ऑफ द अर्थ है, उसको हम देखेंगे। पहले चौथा देख लेते हैं। चौथा क्या बोल रहा है कि रेडियो एक्टिव डीके एंड जनरेशन। Radioactive decay played significant role in the earlier heating of the earth. Radioactive elements present in the earth's interior, such as uranium, thorium, decay over time, release that this heat contributed to the melting and differences of material within the earth, leading to the formation of the core and the generation of the earth magnetic field. इसका मतलब क्या है बताते हैं, उससे पहले पांचवा पढ़ लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर ओशन। The Earth's earlier atmosphere is believed to have been composed of gases emitting during volcanic activity such as water vapor, carbon dioxide, and nitrogen. Over time, as the Earth cooled, water vapor condensed, leading to the formation of the ocean. The presence of liquid water and the development of atmosphere were crucial for the emergence of life of Earth. अब मतलब समझाते हैं आप लोगों को। इसकी बात करें तो रेडियो डीके प्लेड सिग्निफिकेंट रोल इन द अर्लियर हीटिंग ऑफ द अर्थ। मतलब जो प्रारंभिक रेडियो धर्मी है, ये रेडियो एक्टिव है, महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है हमारे प्रारंभिक तापमान में, मतलब सिग्निफिकेंट अर्लियर हीटिंग में। पृथ्वी के आंतरिक भाग में मौजूद, मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट इन द अर्थ इंटीरियर, मतलब पृथ्वी के आंतरिक भाग में मौजूद रेडियो धर्मी तत्व जो भी हैं, जैसे कि यूरेनियम, लाइक यूरेनियम, थोरियम, ये सभी चीज़ें हो गई, समय के साथ ओवर टाइम रिलीजिंग हीट, यह समय के साथ आपका उष्मा को मुक्त कर रही है, उष्मा को निकाल रही है, रिलीज कर रही है, छोड़ रही है। दिस हीट कंट्रीब्यूटेड टू द मेल्टिंग एंड डिफरेंसेस ऑफ मटेरियल विद इन द अर्थ। मतलब जो उष्मा है आपका हीट निकल रहा है पृथ्वी के अंदर से, पिघले हुए पदार्थों को योगदान दे रहा है।
हीट कंट्रीब्यूट टू मेल्टिंग एंड डिफरेंसेस मटेरियल्स। जिसे पृथ्वी के केंद्र का निर्माण हुआ, से पृथ्वी के सेंटर का निर्माण हुआ। फॉर्मेशन ऑफ द कोर, कोर सेंटर जिसका कोर का निर्माण हुआ और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हुआ, उसमें अर्थ मैग्नेटिक फील्ड भी शामिल है। अब पांचवा देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड ओशन। ऐसा माना जाता है द अर्थ एटमॉस्फेयर इज बिलीव, मतलब ऐसा माना जाता है, विश्वास किया जाता है कि प्रारंभिक समय में इमिटिंग ड्यूरिंग वोल्केनिक एक्टिविटी, मतलब जो आपका गर्म गैस है वो ज्वालामुखी के सहारे वायुमंडल में निकल रहा है, सच एज वाटर वेपर, जिसे कि लाइक वेपर मान सकते हैं, जल वाष्प के थ्रू, कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू, नाइट्रोजन के थ्रू जो बना था, सच वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन जो बना था ओवर टाइम, मतलब समय के साथ जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई, समय के साथ जैसे जैसे अर्थ कूल होता गया, वाटर वेपर कंडेंसेस, वाटर वेपर कंडेंसेस, तो कहने का अर्थ है कि जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई, जल वाष्प संघनित होता गया, लीडिंग द फॉर्मेशन ऑफ ओशन। द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड वाटर एंड द डेवलपमेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर वर क्रूशियल फॉर द इमरजेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। इसके कारण तरल जल, जो लिक्विड वाले जल थे उपस्थित थे, वायुमंडल के विकास में अपने जीवन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते गए। यहाँ तक समझ में आया। कन्वर्जन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम, ये सभी चीज़ें भी दी हैं। अगला हम एज ऑफ अर्थ पढ़ेंगे अगली क्लास में, तब तक यहाँ के लिए सब कुछ समझ में आया होगा नेबुलर हाइपोथेसिस के थ्रू। हम ओरिजिन ऑफ अर्थ समझ रहे थे, अब एज ऑफ अर्थ समझेंगे। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जुड़े रहें रेंज लॉसेस से।